السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSO پیس نیشنل ڈیلیگیٹ کانفرنس میں تشریف لائے مختلف اسٹیٹس کے نمائندے، بڑی دور و دراز سے، منی پور سے بھی اور تلنگانہ اسٹیٹ سے بھی، بہار سے اور بھی جتنے اسٹیٹ سے تشریف لائے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے سیشن میں اناگرل سیشن جو ہے ہمارا، اس میں مفتی شاہد مصباحی صاحب، روشن مستقبل، ڈاکٹر سرور صاحب جو MSO کے فاؤنڈر ممبر ہیں، مولانا سلمان رضا فریدی صاحب جو کسی تعلق کے محتاج نہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ بہت ہی زیادہ مطابق ہیں۔ آج ہم لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا زندہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبھی کا MSO کی اس 2 روزہ ڈیلیگیٹ کانفرنس میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ڈاکٹر سرور صاحب یہاں موجود ہیں۔ MSO جب انہوں نے قائم کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اہل سنت کی طلباء اور نوجوانوں کی ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے 2 چیزوں میں، عقائد میں اور کیریئر گائیڈنس ایجوکیشن میں۔ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے تعلیم کی غرض سے علی گڑھ میں جاتا یا جامعہ یا دیگر ماڈرن انسٹیٹیوشن میں پڑھنے جاتا، تو وہاں پر اس کو لائک مائنڈڈ لوگ نہیں مل پانے کی وجہ سے، لائک مائنڈڈ آرگنائزیشن نہیں مل پانے کی وجہ سے، وہ ایک جو ہمارا ایسٹ تھا، ہمارا سرمایہ تھا، وہ غیروں کی جانب چلا جاتا۔ تو یہ تحریک کی بنا اس بات پر پڑی۔ اہل سنت کے اندر ویسے بھی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کی ہمیشہ سے کمی رہی۔ جو 2-4 نوجوان پڑھنے کی غرض سے یونیورسٹیز میں جاتے، وہ بھی انہی کے شکار ہو جاتے۔ تو میں ہمارے فاؤنڈر ممبران کا اور ہم سب لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی فکر لے کر MSO کی بنیاد ڈالی، اور آج الحمدللہ کی تقریباً 15 سے زائد صوبوں میں MSO کی برانچز موجود ہیں۔ منی پور، تریپورہ، جہاں یہ فخر کی بات بھی ہے اور افسوس کی کہ کوئی اہل سنت کی تنظیم وہاں نہیں ہے، لیکن MSO وہاں بھی موجود ہے، اور دوسری تنظیمیں نہیں ہیں جو کہ ہونا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ایک نمایاں کام کر رہی ہے۔ کل ہی کی ابھی بات ہے، روشن مستقبل کے شاہد صاحب موجود ہیں، ان کی کاوشوں سے کل ہم لوگوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر پر، ری اوپن کیمپس۔ جو یونیورسٹیز بند ہیں، ساری چیزیں کھل رہی، ریلیز ہو رہی ہیں، الیکشن کے سارے انتظامات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف نہیں کھلا ہے تو یونیورسٹی اور کالجز نہیں کھلے ہیں، خاص کر سینٹرل یونیورسٹیز۔ تو اس ڈیمانڈ کو لے کر ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں ری اوپن کیمپس، اور الحمدللہ 20 منٹ کے اندر ہمارا ٹرینڈ نمبر 1 پر آ گیا۔ 3:30 بجے ہم نے شروع کیا، 3:30 بجے سے لے کر کے 4:30 بجے تک 1 گھنٹہ پورا نمبر 1 پہ ہمارا ٹرینڈ رہا، اور قریب 45,000 سے زیادہ ٹویٹس اس ری اوپن کیمپس پر ہوئی۔ تو یہ بھی MSO کی اور MSO سے جو جڑے لائک مائنڈڈ آرگنائزیشن ہیں ان کی کاوش کا ہے، نتیجہ ہے کہ آپ کو لوگ سوشل میڈیا پر بھی جاننے لگے ہیں، اور ایک جو فکری بیداری کی مہم MSO نے شروع کی تھی کہ ایک اہل سنت کے اندر انٹلیکچوئل لیڈرشپ پیدا کیا جائے، ان کو فکری طور پر بیدار کیا جائے، الحمدللہ آج وہ اس میں کافی حد تک کامیابی مل رہی ہے۔ میں پورے 2 دن کے پروگرام کا خاکہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو کام کروں گا، کیونکہ ہمیں 2 لوگوں کو سننا ہے۔ پہلے سیشن میں مفتی شاہد صاحب اور سلمان رضا فریدی صاحب کا خطاب ہوگا، اور
और जो 12 बजे तक हमारा पहला सेशन चलेगा, उसके बाद हम लोग इस सेशन का एहतमाम करेंगे। उसके बाद नमाज और लंच का एहतमाम होगा। फिर 3:30 साढ़े 1:30 बजे हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग होगी कि हमको कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मजीद आगे बढ़ाना है, हमको हमारे अंदर क्या तब्दीलियां लेके आनी है बहैसियत एक कारकुन, बहैसियत एक लीडर। इस पर डॉक्टर सरवर साहब मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर खिताब फरमाएंगे और हमारी सबकी ट्रेनिंग देंगे। जो ट्रेनिंग आप यहाँ लेंगे, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अपने अपने स्टेट में जो आप स्टेट लीडरशिप ट्रेनिंग करेंगे वो आप अपने यहाँ करेंगे। आप लोगों को नोट पैड दिया गया है। नोट पैड इसीलिए दिया गया है, कलम इसीलिए दिया गया है कि जो चीजें आपको नोट करने के लायक लगे उनको नोट कीजिए। आप सुनेंगे भूल जाएंगे, लिखेंगे वो कागज पलटेंगे तो याद रहेगा। तो डॉक्टर सरवर साहब इस पर बात करेंगे कि तंजीम क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है बहैसियत फर्द, बहैसियत तंजीम। फिर मुफ्ती शाहिद साहब खिताब करेंगे, उनका होगा कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए मुल्क की तामीर नौ में। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं और हमारे हुकूमत ने हुकूक दिए हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन में क्या हमारा रोल होना चाहिए। फिर कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर एमएसओ की क्या जरूरत है, एमएसओ क्यों जरूरी है, कैंपसेस में क्यों होना चाहिए, मुआशरे में एमएसओ की शाख क्यों कायम करनी चाहिए, नौजवानों के बीच एमएसओ क्यों होनी चाहिए। इस पर दिल्ली स्टेट के जो सदर मुदस्सर शफी साहब हैं वो इस पर बात करेंगे। फिर हम लोग असर की नमाज और असर की नमाज पढ़ेंगे और मगरिब तक ब्रेक रहेगा। मगरिब के बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे स्टेट वाइज, जितने यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं सब लोग अपनी बात रखेंगे। पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह जब आप ज़ुहर की नमाज के बाद आएंगे तो वो ये जो पेपर है सभी के हाथों में होगा। इसमें कुछ तरमीम है, तरमीम होने के बाद सभी के हाथों में दे दिया जाएगा। फिर हम लोग किन किन मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। हमें जोन्स, फॉर्मेशन ऑफ जोन्स करना है, सोशल मीडिया टीम को संगठित करना है, यूपी स्टेट में कुछ तब्दीलियाँ होनी हैं, फिर कैंपस का सर्वे है, फिर जोनल वर्कशॉप हमें करना है, फिर स्टेट वर्कशॉप करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्कशॉप करना है मेरे लीडर्स की, फिर वर्क डिवीजन कैसे होगा। तो ये 3:30 5:30 से लेकर 8:30 3 घंटा है। तो इस पे हम लोग राउंड टेबल बना लेंगे यहीं पे और फिर डिस्कशन करेंगे ग्रुप वाइज। 3 या 4 ग्रुप हम लोग बनाएंगे, उनका एक लीडर होगा, उसको हम बताएंगे कैसे करना है। फिर सारे जो ग्रुप लीडर होगा उसको प्रेजेंट करना रहेगा कि हाँ हमने ग्रुप में ये बात किया, उसका ये रिजल्ट निकल के आया, हम इस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आज का शेड्यूल है। कल इंशाअल्लाह ताला हम लोग सुबह जल्दी 8:30 बजे मिल जाएंगे यहीं पर, नाश्ता जल्दी करके, और 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। 2:30 बजे के तक इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग फारिग हो जाएंगे। कल के जिन चीजों पे हमें बात होनी है उस पर एक अहम बात है कि मीडिया एंड हेट प्रोपेगेंडा। मीडिया में सोशल मीडिया भी है और जो आम जिनको हम मीडिया बोलते हैं इस पर हमारे लिए प्रशांत टंडन जी हैं जो कल सुबह आएंगे। प्रशांत टंडन जी बहुत ही सीनियर सहाफी हैं और वो इस पर बात करेंगे कि मीडिया कैसे नैरेटिव सेट करता है। कोई न्यूज ऐसी आती है हम देखते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट गिरने लगती है या गवर्नमेंट बैकफुट पे आती है, कोई ना कोई एक ऐसा एजेंडा मीडिया लेके आता है या पॉलिटिकल पार्टीज लेके आती है और मीडिया उसको चलाता है और एजेंडा ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये एजेंडा शिफ्टिंग क्या है और मीडिया कैसे हेट को प्रोपेगेट करता है और हमें इसका काउंटर नैरेटिव क्या देना चाहिए। हमें हर चीजों पे रिएक्ट करना है या नहीं करना है, हमें खामोश रहना है या क्या उस पर करना है। तो इस पर हमें पूरी बात बताएंगे क्योंकि मीडिया का पूरा धंधा जो है वो माइनॉरिटी से अभी चल रहा है, मुसलमानों के ताल्लुक से चल रहा है। तो हमें सारी चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है या करना है तो
कैसे हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कि जो आजकल बनाम मुस्लिम बहुत सारी तंजीमें पहले से भी हैं, अभी भी हैं, वो काम करती हैं और दो चीजों का वो फायदा उठाती है, ह्यूमन राइट वायलेशन का, यानी जो त्रिपुरा का वायलेंस हो, असम का हो, या इस तरीके की जो चीजें हैं इनका वो फायदा उठाकर सोसाइटी में, और जो एक एंगर रहता है सोसाइटी के बीच में, यूथ के बीच में, उस एंगर को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। और तो उससे हमें कैसे अपने यूथ को बचाना है, उस इश्यूज को भी एड्रेस करना है, और वो जो यूथ जिसके अंदर एक एंगर पाया जाता है, उस एंगर को हम अपने लिए एक मुस्बत तरीका देना चाहते हैं। ये नहीं हो कि उसको हम रेडिकल बना दें या एक्सट्रीम बना दें। इश्यूज को एड्रेस भी करें, और जो एक डेमोक्रेटिक दायरा है, जो एक कानूनी तरीका है, तो वो क्या होना चाहिए, उस पर सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अखलाक अहमद उस्मानी साहब हैं, वो इस पर हमें बात करेंगे, इस पर पूरी ट्रेनिंग देंगे कि कैसे हमें बात करना चाहिए। इस तरीके से हमारा नेशनल कमेटी का फॉर्मेशन भी होना था, लेकिन चूंकि दिवाली की वजह से सारे स्टेट के सभी डेलीगेट्स नहीं आ पाए, तो कल नए नेशनल प्रेसिडेंट का ऐलान भी होगा इंशाअल्लाह ताला, और फिर उसके बाद हम लोग एक वर्क कैलेंडर बनाएंगे जून तक हमें क्या क्या करना है। फिर उसके बाद हम सब लोग इंशाअल्लाह ताला जो नई डेट नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट की डेट तय होगी, उसमें हम सब लोग इंशाअल्लाह दोबारा। ये 2 दिन का प्रोग्राम का जनरल खाका है जो मैंने आपके सामने रखा। ये तरमीम होने के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला ज़ोहर के बाद में हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम दे देंगे ताकि आप लोग भी इससे उसको देख लें, और इसमें क्या पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं डिस्कशन में, हमारा 5:30 से 8:30 का है, उस पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। तो ये मैं जनरल प्रोग्राम का जो खाका था इसी पर आपके सामने पर बात करने के लिए अब मैं गुजारिश करूँगा